Okay. Hi everyone. Good morning. So today we will see what is array functions in JavaScript. Okay. So in this topic, we will see how we can create the array, how we can access the elements from an array, how we can check the length of an array, then how to look through an array element. Okay. So all these things we are going to learn. So first of all, let me open the application. Okay, so this is our sample application. So in this, you will see how to create an array first of all. Okay, see what is array? Array is one of the data type in JavaScript which can hold multiple values in a one variable. Okay, so अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर डालनी, यू डोंट वांट टू क्रिएट द मल्टीपल वेरिएबल फॉर होल्डिंग मल्टीपल वैल्यूज, इन दैट केस आप एक array बना सकते हो, उसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हो. And it is you can add the values on the basis of indexes into the array. Okay, so array के अंदर various indexes रहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं. तो वो सारे इंडेक्सेस आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं कि पहले इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है. So like that. So if you want to store the multiple values in a same variable on the basis of current index, you can do that with the help of array. तो देखो यहाँ पे कैसा रहता है, where array. Okay, you can give any name to the variable. We already saw the naming convention, right? So where array, and you can have the array in a double quotation square bracket. So let's say पहला value है 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. Okay, after 10. So we are having these many values in one array. So this is how we can declare the array in JavaScript. ओके, नहीं तो क्या होता था कि अगर मुझे वन ये वैल्यू स्टोर करना है, देन आई हैव टू क्रिएट अनदर वेरिएबल लाइक a इज इक्वल टू 1, where b is equal to 2, like that, right? So I will have to write 10 different variable to store these 10 values, but with the help of array you can store all these value in a same variable. Okay, now the question will come into your mind that let's say I wanted to get sixth value. Okay, I want to get this number, so how I can retrieve that from an array? So we can do that with the help of इंडेक्सिंग. ओके, अभी array में एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं, देखो जो पहला एलिमेंट रहता है वो जीरो पोजीशन पे स्टोर रहता है, सेकंड एलिमेंट विल स्टोर एट 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन. तो आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए? आई वांट दिस एलिमेंट 6. तो अगर आपको 6 नंबर का एलिमेंट चाहिए, 6 ये एलिमेंट चाहिए, तो उसका पोजीशन क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, वो आपको पता होना चाहिए. सो 6 नंबर इज रिसाइड एट पोजीशन नंबर 5 बिकॉज इंडेक्सेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ओके, तो यहाँ पे अगर आपको एरे का ये एलिमेंट रिट्राइव करना है, देन यू कैन रिट्राइव दैट विद द हेल्प ऑफ इट्स पोजीशन. तो पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इज फिफ्थ इंडेक्स. नाउ अगर आपने रिफ्रेश किया, let's run this program like this. See, in the alert box you are getting 6. Why? Because you are trying to retrieve the element from an array which is available on the fifth position. Okay, so fifth position कौन है? 6 available. Now I wanted to retrieve, let's say 3, so it will be reside at the position number 2 because 0, 1 and 2. So 3 is available at position number 2. So let's refresh and see the output whether you are getting correct element or not. Okay, you are retrieving correct element, that is 3, which is available at the position number 2. So this is how you can basically create the array and you can retrieve an array, retrieve an element from an array. Okay, now आपको देखना है कि आपके array में total numbers कितने हैं, how many numbers are there in your array. Okay, I'm being using this write function, so you don't have to wait for the pop-up. Okay, मुझे array का length पता करना है. So string का कौन सा function था?
स्ट्रिंग का लेंथ आपको पता करना है, सो you can basically get the length of the string by using the length function, right? So same thing you can also get with the help of length property, not function. By using the length property, you can get the length of your array. How many elements are there in your array? You can get that. So there are 10 elements. Okay. So this is how you can basically get number of elements from an array. Got it? Next is if you want to loop through an array. Okay, loop through. Why you want to loop through? Because let's say you want to retrieve all the elements from 0 to 10. You want to retrieve all the elements from an array. So how we can do that? Okay, अभी यहाँ पे क्या था कि हमने एक एक एलिमेंट रिट्राइव करके देखा, जैसे कि मुझे ये नंबर रिट्राइव करना है और लेट्स से 7 नंबर. So 7 number is reside at the 7 number is available at 6th position. तो यहाँ पे आपको 7 आ जाएगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे के सारे एलिमेंट्स निकालने, तो उस टाइम पे हम ऐसा नहीं करते बैठेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2. दिस विल बी वेरी लेंथी प्रोसेस. ऐसा भी हो सकता है कि आपके array में 1000 एलिमेंट है, सो 1000 टाइम्स we cannot write the same line again and again. So to avoid that, you can still retrieve all the elements within 1 or 2 lines by using the loop. So you can use for loop for integer, sorry, not integer, where I is equal to 0, I less than array का लेंथ. ओके, array का जितना लेंथ है वहां तक आपको क्या करना है, इटरेट करना है, एंड देन यू कैन डू द I प्लस प्लस लाइक दिस. ओके, सो ये जो फॉर लूप है ये कितनी बार घूमेगा अभी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 टिल array का लेंथ कितना है, 0, सॉरी 10. सो लेस देन 10 मतलब 0 से लेके 9 तक ये फॉर लूप घूमने वाला है. सो इट विल इटरेट 10 टाइम्स. 0 to 9 मीन्स 10 टाइम्स. ओके, सो 10 टाइम्स ये फॉर लूप इटरेट होगा, एंड देन इट विल प्रिंट द एलिमेंट, करंट एलिमेंट ऑन द कंसोल विद द हेल्प ऑफ array ऑफ I यानी करंट नंबर. सो क्या होगा देखो, I is equal to 0, I less than 10, I प्लस प्लस, राइट. सो यहाँ पे 0 नंबर का एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होगा, array ऑफ 0, I प्लस प्लस होगा, वो 9 से छोटा है क्या, यस. देन इट विल प्रिंट array ऑफ 1, array of 2, array of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और उसके बाद वो 10 हो जाएगा, and 10 is not less than 10, it will come out of the loop here. Okay, so this is how it will basically print all the elements from an array. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर आपको हर एक एलिमेंट न्यू लाइन पे प्रिंट करना है, ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे br टैग डाल सकते हो. br टैग यानी it will print your numbers in the next line like this. Got it? So this is how we can basically print all the elements from an array. Okay, now next question is if you want to add a new number into the array. Okay, array के अंदर आपको नया नंबर डालना है, तो आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ओके, डेटा स्ट्रक्चर यानी देखो कैसे होता है, क्यू रहता है, स्टैक रहता है. ओके, ये रहते हैं डेटा स्ट्रक्चर. अभी array के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स है. ओके, तो मुझे सबसे लास्ट में एक नंबर ऐड करना है, 11 नंबर यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन वो रन टाइम करना है. रन टाइम मैंने मैं यूजर से पूछूंगा, प्लीज प्रोवाइड अ नंबर, and then user will provide me one number. That number I wanted to push into the array. मतलब ये 10 नंबर तो रहेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और नंबर है जो मुझे सबसे लास्ट में डालना है. ओके, मतलब I will get a new number. New number is equal to prompt box. Okay, let's say enter a new number. Got it? And then we'll ask the number like whatever number they will provide, that number will be here. Now I wanted to push this number inside array. Okay, push यानी कि सबसे लास्ट में डालना है. सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस फंक्शन array डॉट पुश, और कौन सा नंबर डालना है, न्यू नंबर डालना है. आप ऐसा कर सकते
Got it? So what will happen? It will help you to push the new number inside an array. Okay, by using the push function in JavaScript. JavaScript में एक push function है. It will help you to add a new number in a array. And then you can see the output now. ये आपको एक नंबर पूछेगा. आपने बोल दिया मुझे डालना है 101. Okay, so we have 10 numbers, and along with those we are having one more number, that is 101 at the last. Got it? So by using the push function we can push the new element at the end of an array. आपको स्टैक पता रहेगा, फर्स्ट इन, लास्ट इन, फर्स्ट आउट. ये होता है स्टैक. ओके, जो सबसे पहले इन होता है वो सबसे पहले आउट होता है, दैट इज योर स्टैक. और क्यू, क्यू का क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, मतलब जो सबसे पहले इन होता है वो सबसे पहले निकलता है, दैट इज क्यू. दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, तो स्टैक मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो सबसे पहले जो आया है, अभी ऐसा भी करना है मुझे कि आई वॉन्ट टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड देन डिस्प्ले दैट. ओके, जो लास्ट एलिमेंट रहेगा उसको मुझे रिमूव करना है एरे में से. सो कैसे करेंगे? लास्ट एलिमेंट कौन है? 10. आई वॉन्ट टू रिमूव दैट. तो यू कैन यूज एरे डॉट पॉप फंक्शन. ये पॉप फंक्शन क्या करेगा? इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. ओके, एरे में जो सबसे लास्ट का एलिमेंट है 10 है, इसको रिमूव कर देगा. फिर से मैंने पॉप फंक्शन कॉल किया तो 9 को रिमूव करेगा. फिर से मैंने पॉप फंक्शन कॉल किया तो 8 को रिमूव करेंगे. So it is stack, right? Stack means one upper another. So pop function will remove the last element and push function will add to the last position. Okay, so this is the use of push and pop. अभी अगर आप देखोगे array के अंदर अपने 10 elements है, मैंने array dot pop कर दिए and then I'm printing the elements. So how many elements it will print? It will print only 9 numbers, 1 to 9. यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो, it only print 9 number because last वाला जो element है it has been popped from the array. मतलब वो निकल गए एरे में से, लास्ट एलिमेंट निकल गए. ओके, सो बाय यूजिंग द पुश एंड पॉप वी कैन बेसिकली add a new element to the array at the last position or remove the element from an array from the last position. Now let's discuss about queue. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या? अभी मुझे एरे की जो पोजीशन है, शुरू के पोजीशन, शुरू में मुझे एक नंबर ऐड करना है, मुझे यहाँ पे 0 ऐड करना है. ओके, 0 ऐड करना है बट रन टाइम. आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे 0 ऐड कर दो हो गया, उसमें क्यों इतने फंक्शंस कॉल कर? दैट इज ट्रू बट दिस इज हार्ड कोडेड वैल्यू, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि यूजर बोलेगा कि मुझे 0 नहीं ऐड करना है, मैं एक नंबर दूंगा आपको जो मुझे अभी पता नहीं है. दैट नंबर यू हैव टू ऐड एट द फर्स्ट पोजिशन, so दैट नंबर कैन बी एनीथिंग. तो कैसे करोगे? ओके, सो इन दैट केस you can use shift and unshift function in the array like this. Array dot shift, और इसमें आपको क्या करना है? एक नंबर प्रोवाइड करना है. जैसे कि मैंने मान लिया जो भी यूजर देगा वो नंबर, राइट? सो आई विल टेक द नंबर फ्रॉम यूजर एंड ऐड दिस इनटू दिस फंक्शन. देखो अभी क्या होता है, रिफ्रेश, मैंने नंबर डाल दिया मान लो 45. ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके. गलत हो गया, अनशिफ्ट फंक्शन यूज करो. ओके, अनशिफ्ट यानी ऐड करता है, शिफ्ट यानी रिमूव करता है. सो मैंने डाल दिया 45 नंबर. ओके, तो क्या हो गया? 45 नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. देखो फर्स्ट पोजीशन पे 45 नंबर आ गया एंड देन रेस्ट ऑफ द एरे शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पोजीशन. मतलब जो 1 पोजीशन पे था, 0 पोजीशन पे था, वो 1 पे आ गया. जो 1 पे था वो 2 पे आ गया, जो 2 पे था वो 3 पे आ गया. ओके, और 0 पोजीशन पे कौन आ गया? अभी 45 आ गया. तो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली add a new element at the first position in the array with the help of JavaScript. नाउ आपको क्या करना है? पहला नंबर जो भी रहेगा उसको डिलीट करना है. ये जो रहता है ना क्यों, ये कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले निकलेगा. मतलब मुझे फर्स्ट नंबर डिलीट करना पड़ेगा. उसके बाद अगर मैं फिर से शिफ्ट फंक्शन कॉल करूंगा तो ये डिलीट होगा, फिर से कॉल करूंगा तो यही डिलीट होगा. ओके, सो आई वांट टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम एन array फ्रॉम द starting point, not at the ending point.
So in that case, you can use array dot shift function. शिफ्ट फंक्शन जितने बार कॉल करेंगे उतने एलिमेंट्स को फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से निकाल देगा. अभी मैंने एक ही बार कॉल किया तो इट विल रिमूव वन. सी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, सॉरी इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टू. ये मैं निकालता हूँ, रिफ्रेश. देखो एक नंबर निकाल लिया. अभी फिर से मुझे क्या करना है, आई वांट टू रिमूव दिस एज वेल. So I will call the shift function two times. So it will remove first two element. See, I want to remove first three element. See, so this is how we can basically remove the element from starting position by using the shift and unshift function. And by using the pop and push function, you can remove the element from the ending position. Now, next question will come to your mind. Sir, how we can add the element at specific position in an array? Important questions. Okay, ये जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, it will be your interview question. Okay, आपका क्वेश्चन रहेगा कि how we can add the element at the specific position in an array. Is it possible? Yes, it is possible. Okay, so for that we are having one splice function. Okay, so for that we are having splice function in array in JavaScript. I will tell you that. देखो अभी अपने array में कितने एलिमेंट्स है, 1 to 10 नंबर से, राइट. नाउ आई वांटेड टू add 0 between 2 and 3. Okay, I wanted to add zero number between 2 and 3. How I can add? Okay, so you can add like this: array dot splice starting number. कहाँ पे आपको डालना है? 0 1. 3 का पोजीशन क्या है? 2 है. 3 को अपने को क्या करना है? नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करना है. तभी जाके मैं यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ. मतलब मुझे ये पोजीशन फ्री करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे. यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं है, राइट. तो 0 1 2. तो मुझे क्या करना है, 2 पोजीशन पे मुझे एक भी नंबर डिलीट नहीं करना है. एंड देन आई वांट टू ऐड 0 लाइक दिस. ओके, ये अनडिफाइंड आ गया. 0 1 2 0 1 2. इट इज अनडिफाइंड. लेट मी चेक. Yeah, I want it, I think this should be 1 actually. Yeah, so यहाँ पे क्या है कि I wanted to add the element. Which element? 0 element. This 0 is basically the element which you want to add here. So let's say I want to add any runtime number. What I will do again, let's control Z. I want this line. Okay, I will take the input from user, and by using the splice function, you can add that element to specific position like this: array dot splice start number. Where you want to add? I want to add at the second position. Okay, which number? How many numbers you want to add? I want to add only one number. Which number you want to add? I want to add new number. Whatever value is in new number, I want to add that. That's it. अभी क्या हो जाएगा, ये जो पोजीशन है 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा. देखो रिफ्रेश करके. I want to add 100. It should be added into between 2 and 3. अभी क्या हो गया, 3 डिलीट हो गया और उसके बजाय ये नंबर आ गया, because we have added 1 here. So I want to add, I don't want to delete anything, but I wanted to add 100. Okay, like this. Okay, so ये क्या करता है, ये जो 0 रहता है, इसका कहना ऐसा है कि how many numbers you want to delete. कभी कभी ऐसा होता है कि I wanted to replace this number. मुझे क्या करना है, 3 नंबर रिप्लेस कर देना है. तो इस केस में आप यहाँ पे 1 लिखोगे कि भाई 2 नंबर के पोजीशन पे जाओ, वहां पे एक नंबर डिलीट करो और ये नंबर डाल दो, ऐसा. अगर मैंने बोला कि आई डोंट वांट टू डिलीट एनीथिंग,
आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस नंबर एट द पोजीशन सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पे ये नंबर ऐड हो जाएगा और ये पूछेगा कितने नंबर डिलीट करने, कुछ नहीं करना है, तो इट विल जस्ट शिफ्ट द 3 टू द नेक्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे 100 ऐड हो जाएगा, कॉमा, उसके आगे 3 चला जाएगा, उसके आगे 4 चला जाएगा, और सो ऑन। ओके, नो चेंजेस इन दिस सीक्वेंस, बट it will just reserve this space for your new number. So this is how you can add a specific number to the specific position by using an array. So it is very important. Splice function आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में. If you are working with JavaScript, what is the use of splice function? Okay, so just mark it as a IMP question. And you should know कि splice function कैसे क्या यूज होता है, उसका क्या 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 पैरामीटर्स है, उसका यूज कब करना चाहिए, ये सब चीजें सिंपल है. array के अंदर if you want to add the element at any specific position, you can do that. While doing that, you can decide how many elements you want to add, how many elements you want to delete, and where to add and where to delete. मतलब मुझे मान लो अभी 1 और 2 के बीच में 200 नंबर डालना है. ओके, 200. तो क्या पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे? आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन नंबर 1 बिकॉज 0 इज फॉर 1, 1 इज फॉर 2. तो मुझे अगर 1 और 2 के बीच में डालना है तो ऑब्वियसली द पोजीशन विल बी 1. कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं? यहाँ पे 2 को डिलीट करना है क्या, 3 को डिलीट करना है क्या, 4 को डिलीट करना है क्या? नहीं, आई डोंट वांट टू डिलीट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू ऐड. सो इन दैट केस दिस सेकंड पैरामीटर विल बी 0. और कौन सा नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है, वो नंबर का वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो. नाउ यू कैन सी whatever value you will put, let's say 200, 200, it will put between the 1 and 2. See, 1 and 2 के बीच में 200 आ गया. So I just explain you how you can add the new element at beginning, how you can delete the element from the beginning, how you can add new element at the last position, how you can delete that element from the last position, how you can add the element at the specific position. अभी ऐसा भी हो सकता है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, I don't want to add anything, but I wanted to delete this 5. Okay, whatever number I am having at the 6th position, 0 1 2 3 4, sorry, at 4th position, whatever number you are having, that number I wanted to delete. How you can delete that? You can use the splice function only. कैसे? देखो, कौन सा नंबर डिलीट करना है? 5 नंबर. कौन सी पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे. लिखो यहाँ पे 4. कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं? 1. कितने एलिमेंट ऐड करने हैं? कुछ भी नहीं. दैट्स इट. नाउ इट विल डिलीट द नंबर विच इज देयर एट द 4th पोजीशन. 4th पोजीशन पे कौन है? 5 है. सिर्फ 4 के बाद डायरेक्टली 6 दिखेगा आउटपुट में. देयर इज नो 5 अवेलेबल. सो दिस स्प्लाइस फंक्शन इज मल्टीपल पर्पस. इसकी बहुत सारी यूसेज है. ये आपको स्पेसिफिक एलिमेंट जाके एलिमेंट ऐड करने का भी काम करता है, स्पेसिफिक पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करने का भी काम करता है, और एक चीज, इट विल रिप्लेस द एलिमेंट एज वेल. जहां पे 5 है वहां पे 50 डाल दो, ऐसा मुझे लिखना है. जहां पे 5 है वहां पे 50 डाल दो. हाउ आई कैन डू दैट? 5 कहाँ पे है? 4th पोजीशन पे. ओके, तो मुझे ऑब्वियसली 50 डालना है, तो मुझे 5 को डिलीट मारना पड़ेगा. कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं? 1. उसके बजाय क्या नंबर डालना है? 50. सी द आउटपुट. यहाँ पे 5 था, वहां पे 50 चला गया. ओके, so this is how you can basically play with the array at run time. And compile time, मतलब कोड में अगर आपको कुछ करना है तो obviously you can anytime add anything by using the hard coded string. But run time, प्रोग्राम रन होने के बाद अगर आपको ऐड array के अंदर एलिमेंट्स ऐड अपडेट डिलीट करने हैं, you can do that with the help of push, pop, splice, shift, unship function. So these are very important function, don't forget them. Okay, by using an array. So we saw adding the element, removing the element, adding the element at specific position. Next is searching through an array. मतलब array में एक आता specific element available है क्या? Okay, आपको देखना है कि मेरे array के अंदर, इस array के अंदर
वेदर आई एम हैविंग 8 नंबर अवेलेबल, इसके अंदर 8 ये नंबर अवेलेबल है क्या? इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन यूज दिस फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर को पूछो कौन सा नंबर उसको ढूंढना है. एंटर अ नंबर. यूजर ने दिया ये नंबर देखो इस एरे में है क्या, तो मैं देखूंगा इफ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ नम, एरे के अंदर ये नंबर अवेलेबल है क्या. अगर अवेलेबल रहेगा तो वो उसका पोजीशन देगा. मतलब 4 नंबर मैंने डाला तो वो रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न करेगा 3. 4 नंबर इज अवेलेबल एट थर्ड पोजिशन. ओके, मान लो मैंने 8 डाल दिया, सो इट विल टेल दैट 8 नंबर इज अवेलेबल एट सेवंथ पोजिशन. बट ऐसा नंबर डाल दिया 100, फिर ये क्या बोलेगा? 100 इज नॉट अवेलेबल. हाउ? इट विल रिटर्न -1. -1 यानी दैट नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे. तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ नॉट इक्वल टू -1. ओके, अगर एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ नॉट इक्वल टू -1, अगर वो -1 नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट है, तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कंसोल या फिर अलर्ट. वो नंबर कौन सा है आपने जो डाला था, न्यू नंबर प्लस इज प्रेजेंट इन एन एरे. अगर उसने -1 दिया, मतलब क्या? वो नंबर प्रेजेंट नहीं है. फिर मैं ऐसे बोलूंगा इज नॉट प्रेजेंट इन एन एरे. ओके, देखो रिफ्रेश को, अपना एरे में हमें पता है 7 नंबर है, तो ये क्या बोलेगा? 7 इज नॉट प्रेजेंट, विच इज रॉन्ग. लेट्स चेक. एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 7 इज नॉट इक्वल टू -1. बराबर है कोड. लेट मी चेक. 7 is not present, so are you sure? Let's do one thing. Let's do parse int here. Okay, maybe वो data type check करता है. I don't want him to check that. Let's check now. 7. Yes, 7 is present. So actually क्या होता है, ये जो not equal to function है ना, it will check the value as well as data type. कभी भी हम prompt box में जो भी नंबर डालते हैं, जो भी वैल्यू डालते हैं, that will come in your program as a string variable. हमने वो कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में. बाय यूजिंग द पार्सेंट फंक्शन वी कैन कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ योर करंट वैल्यू इनटू द इंटीजर. ओके, 7 ऐसा था वो, ऐसा डबल कोटेशन वाला 7 था, इसलिए उसको नहीं मिला. फिर मैंने उसको ऐसा कर दिया विदाउट डबल कोटेशन वाला. देन आई फाउंड दैट 7 इन द सीक्वेंस, इन एन एरे. एंड देन उसने इंडेक्स दिया उसका 6. सो 6 इज नॉट इक्वल टू -1, दैट्स व्हाई इट प्रिंट दिस लाइन, 7 इज प्रेजेंट इन एन एरे. ओके, अगर मैं अभी दूसरा कुछ नंबर डालूंगा जो एरे में है ही नहीं, 100 डाल दिया, 100 इज नॉट प्रेजेंट इन एन एरे बिकॉज 100 यहाँ पे उसने दिया -1. सो ये कंडीशन फॉल्स हो गया. फॉल्स होने के बाद वो एल्स ब्लॉक में गया और ये कंडीशन प्रिंट. ये आपको पता है, एल्स ब्लॉक, इफ ब्लॉक, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप. इट वाज बेसिक but important. Now going for our whatever programs we will write, we require those all these things. Okay, I hope you got the understanding about array function. Let me check if there is anything remaining. Creating a string from an array, extracting the position of an array, merging two arrays. Okay, creating the string मतलब अगर array है तो उसका string कैसे बनाना है. अभी क्या होता है कि मुझे array print करने के लिए for loop बनाना है, right? लेकिन for loop नहीं लगाना मुझे. I want to print the array as a string, comma separated string. So I can do that like document dot write. यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, array डॉट जॉइन, और यहाँ पे कॉमा दे दूंगा.
कि भाई ये जो एरे है उसको जॉइन फंक्शन से क्या करो, इसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड जॉइन करो, एक स्ट्रिंग बनाओ, और वो स्ट्रिंग मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखानी है. So that's why it will print array. Let me remove this actually. This is not for now. Okay. So एक array है उसको मुझे string format में दिखाना है. देखो 1, 2, 3. For loop घुमाने की जरूरत नहीं array element दिखाने के लिए. I can still convert the whole array in the string and print a string on the document. So this is your join function for that. Got it? Next है extracting a portion of an array. मतलब array में से मुझे सब एरे निकालना है, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट से निकाले, जैसे कि 5 से लेके 8 तक इतने एलिमेंट डिस्प्ले करने. दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ सब स्ट्रिंग फंक्शन लाइक एरे डॉट सब स्ट्रिंग, सॉरी सब स्ट्रिंग. एरे डॉट सब स्ट्रिंग तो नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग के लिए रहता है. लेट मी चेक. आई थिंक वी कैन यूज स्लाइस फंक्शन. ओके, सब स्ट्रिंग नहीं, स्लाइस फंक्शन अपन यूज कर सकते हैं. स्लाइस, स्लाइस फंक्शन क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग नंबर पूछेगा कहाँ से कहाँ तक एरे चाहिए. आई वॉन्ट एरे फ्रॉम द सेकंड पोजिशन टिल कितने एलिमेंट चाहिए, उसके लेंथ पूछेगा. आई वॉन्ट एंड पोजिशन, सो सेकंड पोजिशन से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक चाहिए. सो मैं डालूंगा 4. तो ये क्या करेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी चाहिए, राइट. 0, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, ये दो ही एलिमेंट देगा. लेट्स डू इट लाइक दिस, 1, 2, 4, ऐसा 3 एलिमेंट्स अभी रिटर्न करेगा. और वो जो 3 एलिमेंट्स है मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया यूआई में. ऐसे 2, 3, 4 मुझे ऐसा चाहिए, 2 से लेके 5 तक, तो ये ऐसे डिस्प्ले कर देगा 3, 4, 5. वॉट इट. So this is how we can basically retrieve the portion of an array, or we can consider slice of an array. Okay, slice function से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए what this function will do. It will basically get the portion, small part of your array. Okay, slice. Okay, splice यानी क्या, वो अलग है. स्प्लाइस एंड स्लाइस, ये इसका डिफरेंस भी पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस फंक्शन एंड स्प्लाइस फंक्शन, आपको बोलते आना चाहिए. ओके, और नेक्स्ट वन इज मर्जिंग टू एरेज. ओके, मान लो अभी अपने पास दो एरे हैं. एक एरे है एरे वन, वेर एरे वन एंड एरे टू. ऐसे दो एरे. पहले एरे में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, दूसरे एरे में क्या है, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, ऐसे दो एरे है अपने पास. नाउ आई वांटेड टू मर्ज these two arrays together and display the values in one go. अभी अगर मैंने ऐसा किया, डॉट array1 डॉट जॉइन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 to 5 नंबर दिखेंगे. अगर मैंने ऐसा किया array2 डॉट जॉइन, क्या हो जाएगा, 6 से 10 नंबर तक एलिमेंट दिख जाएंगे. लेकिन आई वॉन्टेड टू जॉइन दिस टू array टूगेदर एंड डिस्प्ले द कंसोलिडेटेड आउटपुट. कंसोलिडेटेड मतलब दोनों का मिलके जो बनेगा वो आउटपुट दिखाना है. ओके, so you can do that like this, array1 dot concat, there is a concat function, you can use array2 and now display, यहाँ पे लिखो now display array1. array1 के अंदर 2 मैंने डाल दिया. ओके, सॉरी, इट इज अ म्यूटेबल फंक्शन, म्यूटेबल डेटा टाइप. म्यूटेबल यानी यहाँ पे आपको एक array3 लिखना पड़ेगा. तो 1 के अंदर 2 जाके जो आउटपुट आएगा वो 3 में आएगा, एंड वो 3 आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो लाइक दिस. गॉट इट. so this is your array1 and array2 का concatenated version. ओके, तो आप बोलेगे सर ऐसा क्यों करना है, दो एरे लिखोगे उसको ज्वाइन करोगे, सीधा एक ही एरे में सारे डाल दो, सिंपल. लेकिन व्हाट एवर एग्जाम्पल आई एम गिविंग दैट इज फॉर रन टाइम. कभी कभी क्या होता है कि रन टाइम में आपको मल्टीपल एरेज आते हैं डेटाबेस में से,
अलग अलग टेबल में से वैल्यूज आते हैं। मतलब मान लो आपके पास मार्क्स नाम का टेबल है, वहां से सारे मार्क्स आ गए। आपके पास अलग कुछ रैंकिंग नाम का टेबल है, वहां से सारे रैंकिंग आ गए। अभी आपको स्टूडेंट के मार्क्स और उसकी रैंकिंग दोनों को मिक्स करके दिखाना है, हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, रन टाइम अगर आपको कुछ वैल्यूज आने वाली है, दैट यू लाइक वैल्यूज विच यू कैन नॉट डिफाइन ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। प्रोग्राम राइट करते टाइम आपको पता नहीं है कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। सो फॉर सच डायनामिक वैल्यूज यू शुड नो हाउ टू कंबाइन टू एरेस टुगेदर। ओके, तो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि अरे सिंपल था, दो इसमें सर ने डिवाइड कर दिया एंड देन उसको कॉन्केट करके फिर से दिखा दो। क्यों करना है, एक ही इसमें डाल दो और प्रिंट कर दो। लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। आपको ऐसे सिनेरियोज आते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे कि दो अलग अलग एरे आए हैं, दो डिफरेंट सोर्सेस से, यू आर टू कंबाइन देम टुगेदर एंड प्रिंट हियर, so that you can do. Got it? So this is all about array function. I hope you got the understanding of all these function. I will post this recording and then we'll next discuss on the next topic. Let me stop it.